آج میں بات کریں گے قاتل وائرس کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا کے کاروبار جاری ہیں۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 138 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ٹوبہ میں مزید 11 اور چنیوٹ میں 6 افراد میں کرونا کی تصدیق ہو گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کرونا کے کاروبار فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 138 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ ٹوبہ میں مزید 11 اور چنیوٹ کی بات کی جائے تو 6 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 138 نئے کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں۔ ٹوبہ میں مزید 11 اور چنیوٹ میں 6 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ کرونا کی تیسری لہر دن بدن شدت اختیار کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے بارہا کرونا SOPs کو فالو کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ شہریوں کی جانب سے بے احتیاطی دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کے باعث نہ صرف ہسپتالوں میں کرونا کے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ کرونا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان بھر کی طرح فیصل آباد ڈویژن میں بھی کرونا اپنے پنجے گاڑتا جا رہا ہے۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 138 نئے کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں۔ بات کی جائے ٹوبہ ٹیکسنگ کی تو ٹوبہ ٹیکسنگ میں 11 افراد رپورٹ ہوئے، جبکہ چنیوٹ میں 6 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کرونا کے بڑھتے وار الائڈ اسپتال میں 26، جنرل اسپتال غلام محمد آباد میں 30 اور DHQ میں 15 ہائی فلور آکسیجن بیڈز رہ گئے۔ ٹیچنگ اسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو گھروں میں رہ کر خود کو محفوظ رکھنے کی اپیل۔ آپ کو بتا رہے ہیں کرونا کے بڑھتے وار کے پیش نظر الائڈ ہسپتال میں 26، جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں 30، DHQ میں 15 ہائی فلو آکسیجن بیڈز رہ گئے ہیں۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کی انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو گھروں میں رہ کر خود کو محفوظ رکھنے کی اپیل سامنے آئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے آزادار حسین سے۔ آزادار حسین، بتائیے گا اب کچھ بیڈز ہی باقی رہ گئے ہیں؟ آج بالکل الائڈ DHQ اسپتال اور جنرل اسپتال غلام آباد میں کورونا وائرس کے مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ الائڈ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے 310 ہائی فلو آکسیجن کے بیڈ مختص کیے گئے ہیں اور اس میں سے 284 پیشنٹ اس وقت زیر علاج ہیں۔ جنرل اسپتال غلام آباد میں 101 ہائی فلو آکسیجن بیڈ مختص کیے گئے ہیں، 71 پیشنٹ زیر علاج ہیں۔ DHQ اسپتال کی کیا صورتحال ہے؟ ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر اسحاق صاحب سے جانتے ہیں۔ سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس جو ٹوٹل بیڈز اویلیبل ہیں وہ 133 ہیں، جن میں سے 118 پہ مارننگ پہ پیشنٹس موجود ہیں ہائی فلو آکسیجن والے، اور 15 بیڈز ہمارے پاس خالی تھے، ویکنٹ تھے۔ ابھی انفلیکس پیشنٹس کا بہت زیادہ ہے، ہر آدھے گھنٹے میں 2 سے 3 پیشنٹ آ رہے ہیں، جنہیں ہم ریفیوز کسی صورت نہیں کر رہے، اکاموڈیٹ کر رہے ہیں۔ وی آر گوئنگ ٹو انکریز دی بیڈ اسٹرینتھ بائی 50 ان اے ڈے اور سو۔ وہاں آکسیجن پوائنٹس لگ گئے ہیں، سینٹرل سپلائی ہم دے رہے ہیں، اور ود ان اے ویک ایک نیا آکسیجن ٹینک بھی ہم لگا رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم لوگوں سے بار بار یہ اپیل کریں، SOPs پہ عمل کریں، سوشل ڈسٹینس۔ لوگوں سے بار بار اپیل کی جا رہی ہے احتیاط برتنے کی انتظامیہ کی جانب سے۔ آزادار حسین آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب جھنگ کا رخ کریں گے، جہاں پر کرونا کی وبا میں تیزی آئی ہے، آکسیجن مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ DHQ ہسپتال جھنگ میں آکسیجن گیس سلنڈر کی نئی کھیپ آ گئی ہے۔ تفصیلات جانیں گے مبشر حسن نقوی سے۔ مبشر، بتائے گا نئی کھیپ کے حوالے سے۔ بالکل، کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور کرونا کے جو مریض ہیں ان کو آکسیجن گیس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جس پر جھنگ DHQ ہسپتال انتظامیہ نے اس کا بر وقت اقدام کیا اور انہوں نے آکسیجن کنسنٹریٹر خرید لی ہیں، جس کے آنے سے بلا شبہ مریضوں کی مشکلات کم ہو جائیں گی۔ اسی حوالے سے DHQ ہسپتال کے MS ڈاکٹر ارتضاء الحسنین سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر، آپ بتائیے گا کہ اس وقت DHQ ہسپتال میں جو مریض ہیں ان کے لیے جو آکسیجن گیس کے سلنڈر ہیں اس کی کیا صورتحال ہے، اور ابھی آپ نے جو نئے آرڈر کیے ہیں آکسیجن کنسنٹریٹر، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے پاس جو کووڈ کے پیشنٹس داخل ہیں ان کے لیے ہمارے پاس جو آکسیجن ارینجمنٹس ہے، ہمارا تقریباً 200 سلنڈرز جو ہیں ارینجمنٹ میں ہیں، 150 پلس ڈیلی کنزمپشن ہے ہماری۔ پریویسلی ہماری آکسیجن کنزمپشن جو ہے وہ 55 سے 65 سلنڈرز پر ڈے تھی۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے یہ چیز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا سپلائی چین میں ڈیفیکلٹیز آ رہی تھیں۔ ظاہر ہے کمپنی کو ہر لاجسٹکس پہنچانے میں بعض اوقات کسی وجہ سے ڈیلے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا سب سے ضروری حل یہی تھا کہ ہمارے پاس کوئی اپنا پرسنل ارینجمنٹ ہو، تو ہم نے بہت شکریہ مبشر نقوی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، رخ کرتے ہیں چنیوٹ کا، جہاں بھی کرونا کی تیسری لہر میں شدت اختیار کی جا گئی۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح
चिन्नौट में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतें 10 से 15% बढ़ गई हैं। इसी हवाले से जानेंगे नुमाइंदा 41 से अब्दुल कदीर से। हाँ बिल्कुल, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर तेजी से फैल रही है और बात की जाए जिला चिन्नौट की तो यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर केसेस सामने आ रहे हैं और जिला इंतजामिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्नौट में आला इन्हिसार यूनिट बनाया गया है जिसमें 18 कोरोना बेड्स जो है वो रखे गए हैं और 18 बेड्स पर ही कोरोना मरीज जो है वो जेर इलाज हैं और ऑक्सीजन की फराहमी के हवाले से जो है वो अस्पताल इंतजामिया और महकमा सिहत चिन्नौट की जानिब से जो है वो 110 लीटर डेली की बुनियाद पर जो है वो उनको फराहम किए जा रहे हैं। हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है AMS डॉक्टर मोहम्मद साजिद साहब। सर बताइएगा कि कोरोना वार्ड में कितने मरीज जेर इलाज हैं और ऑक्सीजन की फराहमी जो है वो उनको कितनी की जा रही है और कितना स्टाफ आपके पास अवेलेबल है? हमारे कोरोना वार्ड यूनिट में 18 बेड की गुंजाइश है और 18 बेड जो हैं वो फील्ड हैं। इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड कोरोना की लहर में 35 कंजम्पशन थी ऑक्सीजन सिलेंडर की हमारे NSR यूनिट में, इमरजेंसी में और इंडोर में, जबकि तीसरी लहर में 110 तक हमें हमारी ऑक्सीजन सप्लाई जो है डिमांड शुरू हुई है और ये सप्लाई रेगुलर हो रही है और एक बार पेशेंट को 2-2 सिलेंडर भी हमें लगाने पड़ते हैं, तो ये लगातार ये सप्लाई हमारी चिन्नौट में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में 10 से 15% इजाफा देखने में आ रहा है। अब्दुल कदीर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में इमरजेंसी के मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन भी मजीद महंगी हो गई है। कितनी महंगी हुई है जानेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें इंसानी ज़िंदगी को बचाने वाली, कोरोना से निजात दिलाने वाली ऑक्सीजन वह ज़रिया होता है कि जब भी इंसान को सांस की प्रॉब्लम होती है तो ऑक्सीजन जो है वो लगाई जाती है, लेकिन वही अब जो है महंगी हो चुकी है। अगर बात करें सिलेंडर की तो 2000 पाउंड का 1500 से बढ़ाकर 1800 रुपये कर दिया गया और इसके अलावा मेडिकल रेगुलेटर जो है उसको भी बढ़ा दिया गया, 500 रुपये फ़ी जो है बढ़ाया गया। शहरी मेरे साथ कुछ मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, ये तमाम चीज़ें ऑक्सीजन सिलेंडर जो है महंगे हो चुकी हैं? पहले सिलेंडर जो था ना 1500 रुपये का था, अब 1800 रुपये का कर दिया है। अब जो रेगुलेटर है वो भी 3000 का कर दिया है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों पे कंट्रोल करे। जो मरीज़ है वो आखिरी सांस पे तो ऑक्सीजन ही चाहिए होती है ना, जो यही महंगी हो जाएगी तो आदमी। शाहिद महमूद हमें अपडेट कर रहे थे ऑक्सीजन की कीमतों के हवाले से। रुख करते हैं फैसलाबाद। पुलिस गरीब किसान के पीछे पड़ गई, जीना हराम कर दिया। फसल तैयार होने पर हिस्सा लेना मामूल बन गया। गरीब किसान से जबरदस्ती नजराना मांगने की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है जिसमें पुलिस एहलकार किसान को धमकियां लगाकर जबरदस्ती पैसे मांग रहा है। इससे पहले भी इसी किसान को यही पुलिस एहलकार गैर कानूनी तौर पर हवालात में बंद और मुबैना तशद्दुद करके रकम वसूल कर चुके हैं। कांस्टेबल की मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग सिटी 41 ने हासिल कर ली है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद पुलिस गरीब किसान के पीछे पड़ गई, जीना हराम कर दिया। फसल तैयार होने पर हिस्सा लेना मामूल बना लिया। गरीब किसान से जबरदस्ती नजराना मांगने की मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई जिसमें पुलिस एहलकार किसान को धमकियां लगाकर जबरदस्ती पैसे मांग रहा है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद है फरजाना सिद्दीक। जी फरजाना, आगाह कीजिएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के नवाही इलाकों में गंदम पककर तैयार हो चुकी। गंदम कटने का महीना है। जो किसान होते हैं उनकी उम्र भर की जमा पूंजी भी यही गंदम की फसलें होती हैं जिन पे सारा साल इन किसानों की जानिब से मेहनत की जाती है। लेकिन नवाही इलाकों में रहने वाले इन किसानों की जानिब से एक और मामला सामने आया है कि उनके इलाके की पुलिस उनको मुबैना तौर पर तंग करती है, हरासा करती है। जैसे ही उनके इलाके में आता है कि इनकी गंदम पककर तैयार हो चुकी है, इनके पास पैसे आने को तैयार हैं, तो इनको मुबैना तौर पर तंग किया जाता है, हरासा किया जाता है और इनसे पैसे वसूली की जाती है। और अगर ये इनकार करें तो उनको मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस करने की धमकियां भी दी जाती हैं। एक ऐसा वाक़या थाना कुर के इलाका में पेश आया है। कुर पुलिस ने किसान के घर पे धावा बोला, सिविल कपड़ों में रेड किया, उसके पूरे घर की तलाशी ली और मुबैना तौर पे अंदर जितना भी कीमती सामान था लेकर फरार हो गए। और बाकायदा तौर पे कांस्टेबल अरशद जो कि थाना कुर में तैनात है, मुबैना तौर पे उसकी एक ऑडियो भी लीक हुई है जिसमें उस किसान के साथ डीलिंग कर रहा है कि उसको पैसे दिए जाएं। जो गाड़ी ने उनके घर रेड किया है, जो
पुलिस एहलकार उसके साथ है उनका भी खर्चा बनता है, वो भी इसको दिया जाए, और अगर इसने ना दिया तो इसको चोरी के झूठे मुकदमे में मुलव्वस कर दिया जाएगा। मजीद उस मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग में ये भी कांस्टेबल की जानिब से इंकशाफ किया जा रहा है कि इससे कबल जो वट्टू चोरी के मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस रह चुके हैं, तहम अब तो वो चोरियां नहीं करते, लेकिन उनकी जानिब से भी पैसे वसूल किए जाते हैं, उसके बाद उनकी जान छोड़ी जाती है, और अगर इन्होंने मुबैना तौर पर इनको पैसे ना दिए तो इनको पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाएगा। ये तमाम तरह ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो सामने आ चुकी है। तहम मुतासरा जो किसान है इमरान, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अपनी जुबानी बताइएगा ये सारा क्या वाकया है? सर मेरा नाम इमरान है, मैं मौदा हैबो के बड़ा रहीशी हूँ। जो थाने कोर वाले पुलिस वाले ना वो मुझे बार बार तंग करते हैं, जब गंदम पक जाती है ना वो हमसे पैसे मांगने शुरू कर देते हैं, साथ साथ धमकियाँ भी देनी शुरू कर देती है। अगर आपने पैसे ना दिए तो मैं आप पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दूँगा, चोरियाँ के इल्ज़ाम ला कर। उन्होंने हमारे घर पर रेड किया, जो हमारे वाले साहब उसको पकड़ कर लाएगा ना। ठीक है। मैंने उनको फ़ोन किया है अपने नंबर पर। ठीक है। हमारे पास ना हम पर कोई FIR है, ना हमारे ऊपर कोई मुद्दई है, जो आपने हम पर रेड किया है किस की वजह से किया है। उन्होंने कहा कि आप। जी बहुत शुक्रिया फरजाना सिद्दीक, आप बता रही थी कि पुलिस वाले किसान को तंग कर रहे हैं। फैसलाबाद पुलिस की मकतूल शान हैदर केस में पेटी बंद भाइयों को बचाने की कोशिश सामने आई है। इसी पर बात करेंगे, वकास अहमद बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस की हटधर्मियां पहले की तरह ही जारी हैं। कहा यह जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं कि महकमा पुलिस के अंदर बहुत सी तब्दीलियां कर दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर साइलिन का जिक्र करें तो साइलिन की ख्वारी जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। इस वक्त भी हमारे पास एक फैमिली मौजूद है जिनका बच्चा शान हैदर, जिसे 6 और 7 फरवरी की दरमियानी शब पुलिस चौकी भाईवाला में जो है जिंदा जला दिया गया था, और उसके बाद वो बच्चा 1 महीने तक इलाइड अस्पताल के अंदर जेर इलाज रहा और 21 मार्च को जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया। 2 माह गुजरने के बावजूद, इस फैमिली के 12 चक्कर लगाने के बावजूद मुकदमा दर्ज हुआ। तो अब इस फैमिली का कहना है कि SHO थाना मिलर टाउन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जल्द इस केस के अंदर सुलह कर लें, अदरवाइज आपके मुकदमा में जो दफात पहले से शामिल की गई हैं वो इंतहाई कमजोर हैं, जिसे जल्द खत्म कर दिया जाएगा। साहिल जो है इस वक्त भी SSP इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है इन्हें बुलाया गया है कि ये दरखास्त दें इनको दोबारा के किसी तरीके से इनकी सुनवाई हो सके। शान हैदर के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि किसकी कॉल आई आपको और इस केस पे क्या पेश रहा? मुझे ना रात को 8:30 बजे कॉल आई थी, उधर ना फरहाना में सब इंस्पेक्टर है, उसकी मुझे कॉल आई कि आपकी तफ्तीश है, इधर आ जाओ। इधर हमने उनको बुलाया हुआ है, तुम्हारे मुल्जमान को इधर बुलाया। जब हम वहाँ गए तो वहाँ कुछ चौधरी साहबान भी आ गए और ये पुलिस वाले भी उधर, ये जो हमारे मुतल्लिका मुल्ज़िम थे ये भी आ गए। अब SHO साहब ने मुझे कमरे में बुलाया, कहने लगे तुम्हारे बेटे ने खुदकशी की है, सारे रिकॉर्ड पे आ गई है, तो तुम ऐसा करो, या तो इनको कुछ सोचो, इनके साथ कुछ साजबाज करके सुलह सफाई करने की कोशिश करो। मैंने इससे कहा कि नहीं, मेरा बेटा मेरा बेटा जल के मरा, मैं इनको छोड़ने वाला नहीं। उसने कहा कि क्या दफ़ा कि ये कुछ नहीं है, 322 पे कुछ नहीं है, मैं ये भी ख़त्म कर दूंगा। बहुत शुक्रिया वकास अहमद बेग, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में मुतवक्का तरक्की पाने वाले 58 ASIs क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता निकले। ASIs संगीन मुकदमात में भी नामजद रहे हैं। ASIs की तरक्की के लिए DPC की मीटिंग चंद रोज बाद होगी। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। आइंदा चंद दिनों में मुतवक्का तौर पर सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने के लिए जिन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के केसेस डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में जेर बहस आएंगे, उनमें से 58 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता निकले। RPO फैसलाबाद की जानब से रीजन के तमाम इजला के जिले पुलिस सरबराहान से ये तफसीलात तलब की गई थी कि जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तरक्की के मियार पर पूरा उतरते हैं उनकी तफसीलात भिजवाई जाए और साथ ही साथ उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उनको अरसाल किया जाए। जिस पर फैसलाबाद पुलिस का क्रिमिनल रिकॉर्ड जब उसकी छानबीन की गई तो 58 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऐसे थे जिनके खिलाफ मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज निकले। उनका ये तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो RPO फैसलाबाद को अरसाल कर दिया गया। पुलिस राय का ये कहना था कि अगले चंद रोज में असिस्टेंट सब तैयब मकबूल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नेशनल मार्केट में कॉटन की कीमत में इजाफा, सूतर मंडी फैसलाबाद में मंदी का रुझान रिकॉर्ड किया गया है। इसी हवाले से जानेंगे नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी मोहम्मद बिलाल, बताइएगा।
बिल्कुल, अगर देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कॉटन की कीमतों के अंदर इजाफा, लेकिन फैसलाबाद एशिया की सबसे बड़ी फैसलाबाद की सूतर मंडी जो है इस वक्त मंदी का रुझान देखा जा रहा है। कीमतें बदस्तूर नीचे जाती नजर आ रही हैं और खरीदो फरोख्त साकन नजर आ रही है। फैसल मियां दासा मौजूद हैं, मेंबर हैं पाइमा के, इनसे बात करते हैं। फैसल कैसे देखते हैं इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर रद्दोबदल देखी जा रही है, दुनिया ऊपर जा रही है लेकिन हमारे अंदर मंदी का रुझान देखा जा रहा है? असल में जो मैंने देखा है वो बेसिक जो मसला है ना, वो इन्वेस्टर जो है ना वो अपने आप को वाइंड अप कर रहा है, बिजनेस में से निकल रहा है, क्योंकि उसको सबसे बड़ा जो र्यूमर चल रहा है कि कभी भी लॉकडाउन हो सकता है, तो लॉकडाउन की वजह से ना बिजनेस एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद हो जानी है। जो हम लोग दुकानदार, हमारे साथ तो वीवर ने टच रहना है, इन्वेस्टर को किसी ने टच नहीं करना। इस वजह से इन्वेस्टर अपना माल जो है ना वो सारा सेल कर रहा है, इस वजह से मार्केट जो है ना वो नीचे आ रही है। और कपड़े की जाहिर बात है वो भी सेल नहीं हो सकती, उसकी भी शॉप्स बंद रहनी है। वीविंग और स्पिनिंग कितनी देर चल सकती है, इसलिए बिजनेस एक्टिविटीज जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को क्लोज कर रहे हैं। शुक्रिया मोहम्मद बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सारिफीन बिजली बंदिश के लिए हो जाएं तैयार। एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के मसाइल पैदा होने लगे। मसाइल के हवाले से मजीद जानेंगे, वैस अली से वैस आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे ने फैसलों के लिए खतरे की घंटी जो है वो बजा दी है। इसी वाले से गट्टी ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के जो मसाइल हैं वो पैदा होने लगे हैं और एनटीडीसी की जानिब से अरसा दराज से गट्टी ग्रिड स्टेशन पर पावर ट्रांसफार्मर जो है वो नस्ब नहीं किया गया। एनटीडीसी के बड़े बड़े दावे जो है वो महज दावे साबित हो रहे हैं। अगर एनटीडीसी की जानिब से गट्टी ग्रिड स्टेशन पर पावर ट्रांसफार्मर नस्ब ना किया गया तो फैसलाबाद के शहरी इलाकों को घंटों बिजली की लोड शेडिंग का जो जी अवैस अली, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि रोटरी क्लब ऑफ लॉयलपुर की जानिब से मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। सदर रोटरी क्लब ऑफ लॉयलपुर फारूक यूसुफ कहते हैं, रोटरी क्लब ऑफ लॉयलपुर का मकसद ही मुस्तहिक अफराद की मदद करना है। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। रोटरी क्लब ऑफ लायलपुर की जानिब से मुस्तहिक अफराद और इंसानियत की खिदमत का बेड़ा उठा लिया गया है और रोटरी क्लब की जानिब से बाकायदा तौर पर रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मुस्तहिक अफराद को राशन तकसीम किया गया है, जिसमें जो रोटरी क्लब ऑफ लायलपुर के मेंबरान हैं उन्होंने शिरकत की और जो राशन तकसीम किया गया है सदर रोटरी क्लब ऑफ लायलपुर फ़ारूक यूसुफ की जानिब से मुस्तहिक अफराद को राशन दिया गया। और मज़ीद इनका क्या कहना है रोटरी क्लब ऑफ लायलपुर के हवाले से, फ़ारूक यूसुफ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी सर, बताइएगा क्या कहेंगे। रोटरी क्लब ने इंसानियत की खिदमत का बेड़ा उठाया है, राशन तकसीम किया गया है, क्या कहते हैं आइंदा आपके स्टेप क्या होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फजील। रोटरी क्लब ऑफ लायलपुर जो चार्टर्ड हुआ वो इस बेस पे ही हुआ कि सर्व टू ह्यूमनिटी, इंसानियत की खिदमत करनी है। इससे पहले रोटरी क्लब ऑफ लायलपुर जो है वो जहेज़ के बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुकी है, एजुकेशन की कर चुकी है, फ्री स्कूल जो है वो इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिए हैं, उसमें एजुकेशन दी जा रही है। तो रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में तमाम मेंबर्स ने ये डिसीजन किया, रोटरी के जितने मेंबर्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पर 500 राशन बैग जो वो तकसीम करेंगे। इस सिलसिले में एक पहली जो हमारा फेज़ था बड़ा मोहम्मद वाला में हमने 100 राशन लोगों को तकसीम किया। इस सेकंड फेज़ में हमने 200 लोगों को किया और तीसरा फेज़ एक नड़ वाला रोड पे गाँव है वहाँ पर ये राशन तकसीम किया जाएगा। और इसके बाद इंशाल्लाह रोटरी क्लब ऑफ लायलपुर जो है वो ईद पर लोगों को सूट जो है वो गिफ्ट करेगी और यही रोटरी क्लब ऑफ लायलपुर का जो है मोटो है कि हमने लोगों को सर्व करना है। बिल्कुल, रोटरी क्लब ऑफ लॉयलपुर का यही मोटो है कि लोगों को सर्व करना है। फजील अहमद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से